नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि कांग्रेस के दफ्तर के अंदर घुसकर दिल्ली पुलिस ने क्या किया, किस नेता को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि हमारे कार्यकर्ता क्या कोई आतंकवादी है जो उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, उनके माता पिता के साथ बदसलूकी की जा रही है। क्या पूरा मामला है, बताते हैं कि आज किस नेता को हिरासत में लिया गया। यूथ कांग्रेस के दफ्तर में पुलिस आती है, आप वीडियो देख सकते हैं। यूथ कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया है, जहां यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद थाने ले जाया जाता है, डिटेन कर लिया गया है। इसके अलावा आपने बहुत सारी ऐसी खबरें देखी होंगी जहां दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट था, तो नेपाल में जो जैनजी वाला आंदोलन हुआ था, उस तरह की तैयारी थी, उस तरह का ये प्रोटेस्ट था। ये आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं। मतलब ऐसे आरोप सुनकर हंसी आती है कि 8-10 कार्यकर्ता एआई समिट में जाकर नारेबाजी करते हैं, तो नेपाल वाले आंदोलन के साथ कैसे तुलना की जा सकती है। इसके अलावा जब इस तरह की खबरें आती हैं कि फला गाड़ी से, फला जगह से टी शर्ट बरामद की गई, बताइए, टी शर्ट को लेकर भी लिखा जा रहा है मीडिया में कि बरामद की गई, मानो कोई हथियार बरामद किए गए हो। टी शर्ट तो उनके हाथ में थी, जो टी शर्ट पर स्लोगन लिखे थे वो तो संसद में भी लहराए गए थे। तो इसमें आखिरकार नया क्या है, इसमें बरामद करने वाली आखिरकार कौन सी बात है। जो प्रोटेस्ट हुआ वो देश के सामने था, उसमें जांच जैसा आखिरकार क्या है, जो घंटों घंटों तक नेताओं से पूछताछ की जा रही है। अब इसे लेकर कांग्रेस से सवाल उठाए हैं, किन किन जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की, इसे लेकर कांग्रेस ने क्या खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। Not only in Delhi, the entire Youth Congress colleagues have been targeted all over the country. There are 4 Youth Congress colleagues who have been taken in custody in Madhya Pradesh. There are 3 people taken in custody in Uttar Pradesh. Yesterday, one of the IYC's admin, I don't know what is the reason to take an admin inside custody. People who are not there, people who are not in that place. It only goes to show that the government is trying to weave a larger conspiracy against the most powerful youth body in this country. Now, around 200 to 300 police have surrounded the premises of IYC, where the national executive is going on. And also, today, our National President Uday Bhanu has also been taken into custody for questioning, is what they say. We will come to know in the evening. Multiple places have been raided, including the Himachal Southern. All searching for what? For one sentence: PM is compromised. This sentence, in the last week, Delhi police has searched all social media handles, all posters, all printers, whoever has printed this have been raided upon. 2 of our DYC presidents have been taken into custody because they put up a poster, PM is compromised. I don't know why the government is so afraid of this phrase. If not, there is some reality to that. In fact, this is the very point that the Youth Congress colleagues wanted to highlight. Our PM is compromised. There is no question about that. And they see, the youth of this country see no hope in this place. Now, we were also told parents of our Youth Congress colleagues have been picked up. You know, I don't know, Delhi police must have much bigger and better cases to solve than going after t-shirts. Some of our colleagues' parents have been picked up. The modus operandi is very simple. They'll pick you up 24 hours and then they'll again send you out. And then again next morning they'll come again pick you up, again question you. And the questions are all the same. How is Youth Congress functioning? Who is funding Youth Congress? How is the poster banner? Who is being printing all this? These are the kind of questions that are being asked to all our colleagues. I don't understand what kind of government will be afraid of, 4 protesters and one slogan. सर, जैसा आपने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यालयों में रेड डाली जा रही है, हिमाचल सदन से लेकर अलग अलग हिस्सों में, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कोई लीगली इस मामले में स्टैंड लिया जा रहा है?
दूसरा सर, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये बोल के रिमांड ली कि ये जो प्रदर्शन था वो जेंजी से प्रेरित था। नेपाल में जिस तरीके से जेंजी वाला प्रोटेस्ट हुआ उससे प्रेरित था। तो क्या कांग्रेस की कोई ऐसी स्ट्रेटेजी थी या कांग्रेस का इसको दिल्ली पुलिस के टेक को लेकर क्या बोलना है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या ढूंढ रहे हैं। अभी इतना रेड मार के क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, ये सिंपल सा बात है। अगर आपको देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ये युवा का बहुत बड़ा बर्निंग इशू है। So this is a huge pain and as a country we should come out and listen to them. तो इस प्रोटेस्ट को हमें उस एंगल से ही देखना पड़ेगा। I also hope that some sense comes into the government and they see this and not go behind these youngsters and book them in atrocious cases. Not only the youngsters, their parents are also being taken. अरे यार, इतना तो आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इतना केस तो है, आप जाके इन्वेस्टिगेट करो। इस बच्चों के पीछे आप क्यों कर रहे हो? ये बहुत स्ट्रेंज है। सेंथिल साहब, मेरे दो सवाल हैं। एक तो जो पड़ताल को लेके आप लोग की जो मांग है दिल्ली पुलिस से, उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिनको जो पुलिस कस्टडी में उन लोगों से, और कुछ दवाई ववाई की दिक्कत आ रही है। मेरी आज बात हुई थी। दूसरा मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है कि अगर आपकी पार्टी इस प्रोटेस्ट के साथ खड़ी है और इसको सही ठहरा रही है, क्या ये देश की जनता को आप लोग बता सकते हैं कि अगर इस प्रोटेस्ट के आदेश आए थे तो वो किससे आए थे, और क्या राहुल गांधी से इनकी बात हुई है या इनके परिजनों से बात हुई है हिरासत में लिए जाने के बाद? ये भी थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें। देखिए, ये बहुत सही बात है कि ये जो अभी मोडस ऑपरेंडी इन्होंने फॉलो कर रहे हैं, ये हैरेसमेंट का मोडस ऑपरेंडी है। ये कुछ गिल्ट फाइंड करने का मोडस ऑपरेंडी नहीं है। किसी को बुलाओ, बिठाओ सुबह से शाम तक। आज हमारा नेशनल प्रेसिडेंट को बिठाएं और शाम तक बिठाएंगे और फिर घर भेजेंगे, सुबह वापस उसको उठाएंगे। घर में 20-30 पुलिस घुसेंगे, कुछ तो तोड़फोड़ करेंगे, फिर उठा के लेके। ये पूरा हरासमेंट का और एम्बेरसमेंट का खेल है। एंड दे आर बीइंग हरास्ड बाय नॉट गिविंग देम इवन बेसिक थिंग्स इनसाइड दिस क्वेश्चनिंग। तो ये हो रहा है। तो कांग्रेस का आरोप है कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि एक सरकार इस तरह से विपक्षी दल को परेशान कर रही है और बदनाम किया जा रहा है कांग्रेस को। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन देश के खिलाफ है, देशद्रोह है, तो फिर बीजेपी वाले क्या किया करते थे। कांग्रेस नेता श्रीनिवास भी ये वीडियो दिखाते हैं जब अनिल विज सहित बीजेपी के बहुत सारे नेता कुर्ता उतारकर प्रोटेस्ट करते थे। तो इसे लेकर श्रीनिवास भी कहते कल के नंगे आज के भाजपाई, और उस वक्त कैसे प्रोटेस्ट होता था, जरा देखिए। तो बीजेपी वाले भी इस अंदाज में प्रोटेस्ट किया करते थे, लेकिन आज पीएम मोदी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं मानो कुर्ता उतारकर कभी किसी ने प्रोटेस्ट ना किया हो। साथ ही आप यूथ कांग्रेस के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे व्यवहार को लेकर क्या सोचते हैं, जहां नेपाल के जेन जी आंदोलन के साथ तुलना की जा रही है और मीडिया ट्रायल चल रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।